Hello everyone, my name is Anmol Verma from GS Faculty of New Careers Academy. हम YouTube पे अपलोड कर रहे हैं जोग्राफी की रिवीजन वीडियोस जिससे मैं बोल सकता हूँ कि यू कैन डू मैक्सिमम क्वेश्चंस इन CDS एंड NDA 2 2024। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट एंड देन विल डू हाइड्रोस्फीयर जिसमें ओशंस आता है, मूवमेंट ऑफ वाटर आता है एंड देन विल डू इंडिया एंड इट्स लोकेशन and at last we'll do physiography जिसमें different divisions आती है like Himalayas, plains. Weather is momentary state of atmosphere. Momentary state. Yani atmosphere at that moment. For example, today atmosphere is cloudy. Means it is cloudy weather. But if we talk about climate, it is monsoon. Okay. 30 years average of weather. नहीं बिल्कुल नहीं होगी. Like पैरामीटर है. We will observe a place for 30 years. उस हिसाब से वहां का क्लाइमेट हम डिटरमाइन कर देंगे. नहीं चेंज क्यों होगा? चेंज नहीं होगा. कॉन्स्टेंट ही तो है. एक साल ज्यादा आ रहा है, एक साल कम आ रहा है, लेकिन आ तो उसी पीरियड में रहा है ना, जून टू सितंबर, है ना. कोई चक्कर नहीं है, एग्जाम तो दे हो जाएगा. एग्जाम तो दे हो जाएगा, बाद में दिक्कत होगी. अगर एग्जाम क्लियर हो गया, बाद में डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आएगी. देखते हैं बाद में. क्लाइमेट, ठीक है. क्लाइमेट कैन बी measured by 3 types: empirical, genetic and applied. Empirical is based on observations, genetic causes, and applied for specific purpose. There was a geologist called Koppen. He observed climate of different regions of world, है ना, और फिर इसने classify किया, and he did it on the basis of empirical, means observations. He classified climate into 5 major types, 5 major climate types, 4 on temperature and 1 on precipitation. Okay, and how he did classify? He named them A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Capital letters. Okay. A is tropical. A is tropical. जहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा? Average temperature of coldest month is 18 degree or higher. Whereas B is dry. B is based on precipitation. ठीक है? Precipitation, where evaporation exceeds precipitation. बारिश कम होगी लेकिन evaporation ज़्यादा है. C is warm temperate. Again temperature. Tropical में था 18, इसमें है 18 to -3 degree. Okay? Average temperature of coldest month is 18 to -3. Warm temperate. Next is D. Cold snow forest. Average temperature of coldest month is even lesser than -3. First is 18, then 18 to -3, फिर -3 से भी कम. Then E, cold climate. Cold में क्या है? Average temperature of all months is less than 10 degree. ठीक है? हर महीने का टेम्परेचर इज लेसर देन 10 डिग्री. ये कहाँ पे होगा? पोल्स पे होता है नॉर्मली, एंड प्लेसेस नियर टू पोल्स. H is highland, cold due to elevation, mountains. Okay, ये देखो different zones of earth. Tropical zone 0 to 23.5, then temperate, and then polar. ठीक है? Now we'll divide tropical climate. Tropical में सबसे पहले आएगा tropical wet climate. That is AF. जहाँ पे small f आ गया, that means no dry season. It is raining all around here. ठीक है? All around the year बारिश होगी. Found near equator. Example, Amazon basin. For example, Amazon basin, Western Equatorial Africa, and islands of East Indies. East Indies, Indonesia, Malaysia. इन islands को बोलते हैं East Indies. Annual range of temperature is very less. Annual range is difference between temperatures. Like गर्मियों में इतना temperature, सर्दियों में इतना temperature. That difference will be very less. सर्दियों में कितना होगा? Max to max 20 हो जाएगा. गर्मियों में 30, 35. Okay. Tropical evergreen forest. Tropical evergreen forests are found here.
बिकॉज बारिश काफ़ी ज़्यादा है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट. नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल मानसून. ट्रॉपिकल मानसून, कैपिटल ए स्मॉल एम. स्मॉल एम आएगा, दैट इज मानसून. व्हाट इज मानसून? रिवर्सल ऑफ विंड्स. ठीक है, रिवर्सल ऑफ विंड्स. एक टाइम विंड जाएंगी, दूसरे टाइम विंड्स वापस जाएंगी. दैट इज मानसून. एंड इट इज ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दैट इज इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका. इट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट. नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका. Heavy rainfall, but in summer. Winter is dry. Winter is dry. It is monsoonal climate. Next is tropical wet and dry. Tropical wet and dry. AW. AW. Small w is winter dry. Winter dry. Okay. Occurs north and south of AF. Means no dry season. Brazil, parts of Bolivia, Paraguay, Sudan, Central Africa. And the forests found here are deciduous forest. Deciduous, not very dense. Okay, lesser trees as compared to evergreen, and more grasses. Okay. Next is very important, dry climate. Dry, बहुत बार पूछा गया है. Dry climate denoted by B. Okay, B is divided into BS and BW. S is semi-arid, W is arid. Arid is, you can say, desert. जहाँ पे डेजर्ट होगा इट इज BW, whereas on the outskirts of BW it is BS, semi-arid. Be it cold, be it hot. ठीक है. On the outskirts of BW we can find BS, that is semi-arid. H is subtropical, K is mid latitude. मतलब लैटिट्यूड से रिलेटेड है इसका H और K का. ये देखो ना, 15 to 35, 35 to 60 लैटिट्यूड. सबसे पहले आएगा सब ट्रॉपिकल स्टेपे एंड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, BSH, BWH. यहाँ पे हमें मिलेंगे ग्रासलैंड्स. ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. एग्जांपल, सवाना इज इन अफ्रीका, कैंपोस ब्राजील, लानोस वेनेजुएला. नेक्स्ट BWH. BWH इज ड्राई. BW आ गया ना, मींस एरिड, पूरा ड्राई. यहाँ पे हमें मिलेंगे डेजर्ट्स. एग्जांपल, सहारा डेजर्ट, लिबियन डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट, अरेबियन, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन. ठीक है. एंड हमने ट्राइब्स भी करी थी. ट्राइब्स फाउंड इन दीज डेजर्ट्स. एग्जांपल, तुराग ट्राइब इज फाउंड इन सहारा. Binti Bush tribe is found in Australian desert, whereas Bedouins is found in Arabian desert. Okay. Now we'll do temperate grasslands. Grasslands found in upper latitudes. For example, prairies, North America, pushtas, Hungary, downs, Australia, veldt, South Africa, pampas, Argentina, steppes, Eurasia. कल भी क्या था हमने, है ना. And last is BWK. K, mid latitude. Deserts found in mid latitudes. Example, Gobi Desert, Gobi, Mongolia. Atacama, driest desert of the world, Chile, Argentina border पे. Kalahari and Namib, both are in Africa. Tribe found in Kalahari is Bushmen and Hottentots. Okay. Next is warm temperate, C, where temperature average of coldest month is less than 18 and more than -3, 18 to -3. Okay. First is CWA, humid subtropical, occurs poleward of Tropic of Cancer and Capricorn, and it is present in North Indian plains. North Indian plains में कौन सा है? CWA. Okay. Next is Mediterranean, very important Mediterranean climate. कल हमने क्या था, मेडिटेरेनियन सी, है ना, बॉर्डरिंग कंट्रीज देखी थी उसकी. ये वहीं पे मिलेगा उन कंट्रीज में, अराउंड मेडिटेरेनियन सी. ओके. यहाँ पे होगी हॉट ड्राई समर एंड रेनी विंटर. विंटर रेन कब हो रही है? विंटर में हो रही है. ठीक है. एंड इट इज वेरी फेमस फॉर citrus fruits cultivation, be it oranges, lemons, grapes, they all are citrus fruits. And famous for wine, क्योंकि citrus fruit से ही बनती है wine, grapes, है ना. पीनी, grape is a citrus fruit.
वो मैंने डाला, पता नहीं यार। नहीं नहीं नहीं, वेरी, I've read somewhere कि grape is citrus fruit. Orange, lemon, tangerine. But this area is famous for citrus fruit, including grapes. ठीक है, grape is a berry. Okay, blueberry, blackberry. Okay, इतना याद रखो. Which climate is famous for citrus fruit cultivation? Mediterranean climate, rainy winters. Okay, and famous for wine. पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी वाइन यही मिले. Next is humid subtropical CFA. CFA on eastern parts of continent. Air masses are unstable throughout the year. It is found in eastern USA, south and eastern China, southern Japan, northeast Argentina, and east coast of Australia. Next, marine west coast climate, CFB. Whole word from Mediterranean. और ये कहाँ मिलेगा? On west coast of continents. इस नाम में ही west coast है. Europe, North America, California, southern Chile, Australia and New Zealand. ठीक है? Precipitation is throughout the year. यानी rain पूरे साल होगी. Next is D. D climate, cold snow forest. जहाँ पे temperature कैसा था? Even lesser than -3 degrees Celsius for average of coldest month. First was DF, humid winters. Whole bird of marine west coast. Winters are cold. Annual range is large. Weather changes are abrupt. बहुत जल्दी changes होते हैं. Next is dry winters, DW. Northeastern Asia. Development of anticyclones. Mainly Siberian region है. DW is Siberian region. Annual precipitation is very less. Now last is polar climate. Polar climate denoted by E. All months temperature is less than 10 degree. Tundra climate, ET. Tundra. Example. यहाँ पे plants होंगे, mosses, lichens, flowering plants. ठीक है. Region of permafrost means permanently frozen. Long duration of daylight. Last is ice cap climate. Ice cap. It is found in Antarctica, Arctic, Greenland, such areas. ठीक है. This is oceans. Ocean. सभी को पता है कि यार अर्थ पे 71% लैंड इज कवर्ड बाय ओशन. ठीक है, 71% पार्ट, रेस्ट इज लैंड. वी हैव 5 डिफरेंट ओशंस, है ना. लार्जेस्ट इज पैसिफिक, देन कम्स अटलांटिक, देन इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक. इंडियन ओशन, वन एंड ओनली ओशन नेम्ड ऑन अ कंट्री. ओके, अब ओशन के अंदर क्या होता है? ओशन के अंदर वी हैव डिफरेंट land forms या फिर different flows. It is divided into 4 major divisions. First is continental shelf, part of continent, continental slope, deep sea plain, यानी plains inside the ocean, and oceanic deeps. Oceanic deeps. ये देखो, ये लैंड है, लैंड की एक्सटेंशन इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ठीक है, ऐसे धीरे धीरे कम होगी और अचानक से ये खत्म हो जाएगी एट कॉन्टिनेंटल स्लोप. कॉन्टिनेंटल स्लोप अचानक से नीचे एकदम तीखी स्लोप आएगी एंड कॉन्टिनेंट एंड्स. ठीक है, और जहां पे एंड होगा यहाँ पे होती है कन्वर्जेंस. दैट इज कन्वर्जेंस बिटवीन ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स. ठीक है, और यहाँ पे बनता है फॉल्ट, क्योंकि जब दो चीजें टकराएंगी तो वहां पे क्या होता है? फॉल्ट बनता है. और ये जो फॉल्ट होते हैं दे आर डीपेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ. एग्जाम्पल मैरियाना ट्रेंच. Trenches. Trenches are basically faults. ठीक है, deep faults
Example, Mariana Trench, Challenger Deep. Okay. First is continental shelf, extension of continent. Gradient is very less, 1 or less. Average width 80 kilometers, लेकिन ज़्यादा भी हो सकती है. ठीक है. Depth is 30 to 600 meters. Next is continental slope. It connects shelf and ocean basins. Sharply drops and it indicates end of continents. Continental slope. यानी ढलान. Canyons and trenches are found here. ठीक है. Next is deep sea plain. जिस तरह land पे plains होते हैं, similar plains are found in ocean. They are flattest and smoothest regions of the world. Depth कितनी है? 3000 to 6000 meters. ठीक है. And they are also called abyssal plains. चला नहीं था क्या? बंद क्यों करते हो यार तुम लोग? कौन करता बंद? कौन है ठंड वाला? Last is oceanic deep. Oceanic deep. They occur at bases of continental slopes and they are deepest part of ocean. Deepest. ठीक है. Example, Mariana Trench, जो कि है Pacific Ocean में. Now some minor relief features. Example, mid oceanic ridges. Ocean के बीच में छोटे छोटे पहाड़. They are ridges. Next is sea mount. Sea mount अगर अकेला पहाड़ है ocean के बीच में, that is sea mount. और अगर उस पहाड़ का हम सिर उड़ा दें, it will be Guyot. Guyot. ठीक है. Gyres. वो gyres है. Circulations, no? That is gyre. Gyre. Submarine canyon. वही trenches. ठीक है. Trenches के बीच में canyon को बोलते हैं submarine canyon. Atoll. Atoll are basically corals के द्वारा बनाए गए islands. That is atoll. Now temperature of ocean waters. It depends on various factors like latitude. If we go towards poles, temperature decreases. Ocean water का temperature decrease करेगा. Unequal distribution of land and water. अब क्योंकि northern hemisphere में क्या है, land ज़्यादा है. That's why northern hemisphere में ocean का temperature is more than in south. Prevailing wind. ठीक है. Prevailing wind. अब एक जगह warm water है, दूसरी जगह cold water है. हवा चली हॉट की साइड से और वार्म वाटर को वहां पे ले गई. वहां पे क्या होगा? कोल्ड का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा. ठीक है. ओशन करंट्स जहां पे कोल्ड होंगे वहां पे ठंडा टेम्परेचर, जहां पे हॉट होगा वहां पे गर्म टेम्परेचर. नाउ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. जैसे हम उसके नीचे जाएंगे, डेप्थ बढ़ेगी सी वाटर के नीचे, तो क्या होगा? टेम्परेचर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. पहले तो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करेगा, उसके बाद अचानक से क्लियर आएगी. दैट इज कॉल्ड थर्मोक्लाइन. वहां पे क्या होगा? सडन डिक्रीज इन टेम्परेचर. बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. और 90% ऑफ ओशन वाटर इज फाउंड बिलो थर्मोक्लाइन. ठीक ठीक, ये लिखा हुआ 90% इज बिलो थर्मोक्लाइन. वो हॉरिजॉन्टल है. वी आर डूइंग वर्टिकल नाउ. ठीक है. वर्टिकल इज, हॉरिजॉन्टल इज, हाँ वो मूव करता है, वो मूव करता है. ठीक है. ये देखो फर्स्ट लेयर इज 500 meters, सेकंड लेयर इज थर्मोक्लाइन एंड थर्ड लेयर जो डीपेस्ट लेयर है उसके नीचे वाली. और यहाँ पे टेम्परेचर फिर से धीरे धीरे कम होगा. ओके. रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज 0.5 डिग्री सेल्सियस पर लैटिट्यूड. नेक्स्ट इज सैलिनिटी. अब हर एक ओशन की सैलिनिटी बराबर नहीं होती. कोई ज्यादा सलाइन होगा, कोई कम होगा. ओके. एंड इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन. जहाँ पे ज्यादा बारिश होगी सैलिनिटी विल बी लेस. सैलिनिटी विल बी लेस क्योंकि फ्रेश वाटर आ रहा है. फ्रेश वाटर डिक्रीजेस सैलिनिटी, whereas evaporation increases salinity. Okay. फ्रेश वाटर इनफ्लक्स, जहाँ पे ज्यादा रिवर्स आएंगी दैट इज लेस सलाइन, कम रिवर्स मोर सलाइन. विंड क्या करेगी? अगर कहीं पे ज्यादा सलाइन वाटर है उसको ले जाएगी, दूसरी जगह ले जाएगी, मिक्स कर देगी. ठीक है. ओशन करंट्स सिमिलर विंड के जैसे. हाईएस्ट सलाइन वाटर बॉडी लेक वैन इन टर्की. लेक वैन इन टर्की, इवन मोर देन ओशंस.
ओशंस की होती है अराउंड 34-35, इट इज 330, 10 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेड सी। डेड सी सबने सुना होगा, ऑन बॉर्डर्स ऑफ जॉर्डन एंड इजराइल, ठीक है। ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए में, लेक वैन इन टर्की, ये ऐसी वाटर बॉडीज हैं जहाँ पे कोई डूबेगा नहीं बिकॉज ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अब आएगा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा, जहाँ पे ठंड ज़्यादा वहाँ पे सैलिनिटी कम। पैसिफिक सैलिनिटी इतनी है, अटलांटिक देन इंडियन, ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमिलर टू थर्मोक्लाइन वी हैव अ लेयर कॉल्ड हेलोक्लाइन, जहाँ पे सैलिनिटी इंक्रीजेज शार्पली, हेलोक्लाइन। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। ओशन वाटर कैसे मूव करेगा, डिफरेंट तरीके से मूव करता है। फर्स्ट इज वेव्स, सबने देखा होगा वेव्स, है ना, बीचीज पे देखा होगा वेव्स कैसे आती हैं। इट इज बिकॉज ऑफ विंड, वेव्स मूव बिकॉज ऑफ विंड, ठीक है। और वेव्स में क्या होता है, व्हेन इट इज इन डीप वाटर्स, वहां पे वाटर मूव नहीं करता, वाटर जस्ट डू लाइक दिस बिकॉज ऑफ एनर्जी इनसाइड इट, ठीक है। वाटर आगे पीछे नहीं होगा, वाटर सिर्फ ऊपर नीचे होगा, एनर्जी ट्रेवल्स नॉट वाटर। लेकिन जब वो सी के पास आ जाएगा तो उसकी वेवलेंथ आधी हो जाएगी एंड इट ब्रेक्स, तब वो वाटर आगे आता है, ओके। सी व्हेन डेप्थ ऑफ वाटर इज लेस देन हाफ द वेवलेंथ, द वेव ब्रेक्स, तब वो वेव आगे आगे करती है। नेक्स्ट इज टाइड। टाइड, टाइड्स इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, ठीक है। टाइड्स बता सको क्या होता है टाइड? अगर आप कभी बीचेस पे जाओगे या फिर जहाँ पे टाइड ज्यादा आती है वहां पे जाओगे ना, सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन बीच, अगर 3-4 घंटे बाद आप वहीं पे खड़े रहोगे तो पानी आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा, इतना ज्यादा पानी बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, दे आर कॉल्ड टाइड्स, ठीक है। पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सन एंड मून, देयर ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। ये देखो, मून और सन ने क्या किया, वाटर को अपनी साइड खींच लिया, और जिस साइड से खींचा उस साइड का ओशन वाटर बढ़ जाएगा। और इसको बैलेंस करने के लिए अर्थ क्या करती है, अर्थ ऑपोजिट फोर्स लगाती है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब क्या होगा, एक टाइम पे दो जगह पे बल जा गया ऑफ ओशन वाटर, दो जगह पे टाइड जाएंगी, वन इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, सेकंड इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। एंड हाईएस्ट टाइड्स आर फाउंड इन बे ऑफ फंडी, कनाडा, कनाडा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टाइड्स। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, सेमी डायरनल, रोज की दो हाई दो लो, ठीक है। सेकंड इज डायरनल, ओनली वन हाई वाई लो। नेक्स्ट इज मिक्स्ड, कैसी भी, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सन मून, स्प्रिंग टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स कब आएंगी, व्हेन सन मून एंड अर्थ आर इन सेम लाइन, सेम लाइन। यानी ये कब होगा, इधर ऑन न्यू मून, इधर ऑन फुल मून। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? फुल मून इज, फुल मून इज पूर्णिमा, पूर्णिमा पूरा चांद दिखता है ना, पूरी मून लाइट। न्यू मून इज अमावस्या, ठीक है। तब क्या होगा, हाइट ऑफ टाइड विल बी हायर देन नॉर्मल, हायर देन नॉर्मल, ठीक है। एंड इट अकर्स ट्वाइस अ मंथ, फुल मून न्यू मून। ये देखो डायग्राम, फुल मून कब होता है, न्यू मून कब होता है? फुल मून इज व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, ठीक है। इट इज कॉल्ड लूनर एक्लिप्स, मतलब लूनर एक्लिप्स इस टाइम होता है। एंड न्यू मून व्हेन मून कम्स इन बिटवीन सन एंड अर्थ, तब होता है सोलर एक्लिप्स, व्हेन मून कवर्स द सन, ठीक है। सन देखा होगा आपने। नेक्स्ट इज नीप टाइड्स। नीप टाइड्स 7 days आफ्टर फुल मून एंड न्यू मून, ठीक है। और इस टाइम क्या होगा, सन एंड मून आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर एट राइट एंगल, और इस टाइम टाइप्स विल बी लोअर देन नॉर्मल, लोअर देन नॉर्मल, बिकॉज वो एक दूसरे की फोर्स को काउंटरैक्ट कर रहे हैं।
And also when Earth is at perihelion and perigee, tides will be higher, and when it will be at aphelion and apogee, it will be lower. Next two terms, ebb and flood. Flood is when tide is rising. Ebb is when tide is lowering down. Next is very important, ocean currents. Ocean currents. Water move करता है on surface and also in subsurface. ठीक है, मैंने कराया था क्यों करता है. सरफेस पे क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑन इक्वेटर्स. और सब सरफेस क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस. ठीक है, ये देखो, इक्वेटर, पोल्स, इक्वेटर से पोल्स पे जा रहा है, बट ऑन सब सरफेस इनसाइड क्या हो रहा है? पोल टू वार्म, दैट इज पोल्स टू इक्वेटर. ठीक है, फिर हमने बनाया था मैप, वर्ल्ड मैप बनाया था, एंड वी डिड ओशन करंट्स. ओशन करंट्स कोल्ड करते हैं because important are cold. California is cold, like California current. Where Peru current is cold. Falkland is cold. Labrador is cold. Benguela is cold. Canaries is cold. And West Australian is cold. Here Oyashi is cold. ठीक है, rest are warm ocean currents. ठीक है, और मैंने बताया था where warm and cold meets, वहाँ पे क्या होता है? Fog and best fishing grounds, है ना? टाइटैनिक स्टोरी. ठीक है, वो दोनों पोज मारे थे एंड इट संक डाउन. ठीक है, गोता लगा लिया. इन डिटेल आप लोग चिल करो, है ना? 2 सितंबर तक चिल करो, उसके बाद होगा, फिर होगा, उसके बाद होगा तांडव. ठीक है, फिर मैं अगले दिन ये नहीं सुनूंगा, मैंने ये नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना. ठीक है, सारगैसो सी, द ओनली सी विदाउट एनी कोस्ट, क्या था ना? एंड इट इज प्रेजेंट इन अटलांटिक ओशन. ओके, नेक्स्ट वी डन यूएन क्लॉज. यूएन क्लॉज इज अ कन्वेंशन, ठीक है, जिससे पता चलता है कि कंट्री की लिमिट कितनी है ओशंस में, है ना? अब ऐसे तो हर कंट्री मान के बैठ जाएगी कि मेरा ओशन पूरा मेरा ही है. अब इसको कंट्रोल करने के लिए देयर शुड बी अ कन्वेंशन, रूल्स होने चाहिए. और वो रूल्स किस में आते हैं? यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज. इसमें क्या बोलते हैं कि एक कंट्री का टेरिटोरियल सी कितना होगा? 12 नॉटिकल माइल्स. एक नॉटिकल माइल में 1.8 किलोमीटर होता है. ठीक है, टेरिटोरियल सी कितना होगा? 12 नॉटिकल माइल्स. उसका आगे कॉन्टिग्युअस जोन कितना होगा? अगेन 12, यानी टोटल 24 हो गया. और उसके आगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, दैट विल बी 200 नॉटिकल माइल, यानी जहां तक एक कंट्री एक्सप्लोर कर सकती है, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकती है, फिशिंग कर सकती है, दैट इज EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. ठीक है, और किया था हमने लोकल विंड्स, वार्म कोल्ड. वार्म विंड्स कैसी थी? जैसे कि फोन, जो कि एल्प्स में है, चिनूक विंड, जिसके नाम पे हेलीकॉप्टर है, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर. देन वी हैव बर्ज, साउथ अफ्रीका, जोंडा, पगानी जोंडा. लू, काल बैसाखी, इंडिया. सैंटा एना, कैलिफोर्निया. खम्सिन, इजिप्ट. हैरमेटन, which is also called doctor, is in Africa. Then Sirocco, Shamal, these all are warm winds. Then we did cold winds. Chinook is in USA, Americas में बोल सकते हो. ठीक है, cold winds, Mistral, France, Southerly, Bora, Pampero, Blizzard, Levanter and Buran. These all are cold winds. ठीक है, ये हो गया हमारा फिजिकल ज्योग्राफी. नाउ विल डू इंडियन ज्योग्राफी. ये तो हमारा था फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें क्या होता है? थ्योरी होती है. इंडियन इज एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज. ठीक है, विद इंडियन पर्सपेक्टिव. ठीक है, ठीक है,
इंपॉर्टेंट पीक्स इन ट्रांस हिमालय और या फिर काराकोरम. सबसे इंपॉर्टेंट K2, वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक K2, ऑल्सो कॉल्ड गॉडविन ऑस्टिन. और है हमारे पास K3, K4, K5. हमें यहाँ पे मिलेगी पैंगोंग सो लेक, पैंगोंग सो, जो कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स पे है. नेक्स्ट इज लद्दाख रेंज, लद्दाख. ठीक है, लद्दाख रेंज इंडो तिब्बत बॉर्डर्स पे है. और लद्दाख रेंज के पास ही हमें मिलेगा लद्दाख डेजर्ट, दैट इज अ कोल्ड डेजर्ट. ओके, कोल्ड क्यों है? बिकॉज हिमालयस बीच में आ जाते हैं और वो बारिश वहां तक पहुंचने नहीं देते. दैट्स व्हाई इट इज अ कोल्ड डेजर्ट. वहां पे कोई वेजिटेशन नहीं है, जाओगे आप बंजर है पूरा. ठीक है, लद्दाख. नेक्स्ट इज जांस्कर, जांस्कर. लद्दाख के बाद आती है जांस्कर. इट रन्स पैरेलल टू ग्रेटर हिमालयस. ठीक है, और यहाँ पे हमें मिलेगी सो मोरीरी लेक, लद्दाख में. ये भी हाईएस्ट पीक इज कामेत, उत्तराखंड. अब आते हैं ग्रेटर हिमालयस. अब प्रॉपर हिमालयस आते हैं. हिमालयस फर्स्ट इज ग्रेटर हिमालयस. दे स्टार्ट फ्रॉम नंगा पर्वत एंड एंड एट नामचा पर्वत. ठीक है, एवरेज हाइट इज 6000 मीटर्स. पीक इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट पीक माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है ना. इसका नाम नेपाल में है सागर माथा, whereas in Tibet it is called कोमोलोंगमा, कोमोलोंगमा. और ये दोनों पूछे गए हैं इन CDS. व्हाट इज नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट इन नेपाल? ठीक है, आंसर वाज सागर माथा. तिब्बत का भी पूछा गया आई थिंक किसी एग्जाम में, इट वाज कोमोलोंगमा. और इंपॉर्टेंट पीक नंगा पर्वत, कांचनजंगा, जो कि इंडिया की हाईएस्ट पीक है. कांचनजंगा K2 भी इंडिया की है, लेकिन वो पेपर्स पे है. अगर आप ज्योग्राफिकली देखोगे, रियलिटी देखोगे तो कांचनजंगा है. पेपर्स में K2 है. अगर K2 आया तो K2 लगा देना. मेनली क्या होता है ना, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं. एक होता है हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, एक होता है हाईएस्ट पीक इन इंडिया. ऑफ इंडिया K2, इन इंडिया मीन्स कांचनजंगा. इन इंडिया मीन्स जो अभी प्रेजेंट है. ऑफ इंडिया चाहे प्रेजेंट हो ना हो, कागजों पे लिखा हुआ. ठीक है, मकालू, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, ये तीनों नेपाल में है. मकालू K2, इन इंडिया कांचनजंगा, दैट इज इन सिक्किम. टाइम नहीं था यार. नेक्स्ट इज मिडल हिमालयस, दे आर आल्सो कॉल्ड हिमाचल. ठीक है, एवरेज हाइट इज 35 to 4500 मीटर्स. ठीक है, मेजर रेंजेस कौन कौन सी हैं? पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी रेंज, महाभारत रेंज, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी. दे आर इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ मिडल हिमालयस. इंपॉर्टेंट वैलीज कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, कश्मीर वैली. ठीक है, इंपॉर्टेंट हिल टाउन्स शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, लास्ट रेंज ऑफ हिमालयस इज शिवालिक्स. ठीक है, शिवालिक्स सबसे छोटी रेंज हिमालयस की. सदर्न मोस्ट रेंज ऑल्सो कॉल्ड मानक पर्वत. धौलाधार इज कॉल्ड मौलक पर्वत, whereas शिवालिक्स आर कॉल्ड मानक पर्वत. ठीक है, एवरेज एलिवेशन 600 से 1500 मीटर्स. एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन यहाँ पे होती है दुआर, दुआर एंड दून. फिर आपने देहरादून, वो क्या है? जैसे दो पहाड़ियों के बीच में जो वैली होती है, दैट इज कॉल्ड दून. ठीक है, एग्जाम्पल देहरादून, नालागढ़ दून, जसवा दून, पतली दून. ओके, एंड दुआर्स आर प्रेजेंट इन असम एंड अरुणाचल. दुआर्स सिमिलर टू दून्स बट लेसर इन वेट. अब डिफरेंट जोन्स हैं, थ्रस्ट जोन्स यानी सेपरेशन जोन्स बिटवीन हिमालयस के डिफरेंट रीजन. फर्स्ट इज ITCZ, ITSZ, दैट इज बिटवीन ट्रांस हिमालय एंड ग्रेटर हिमालय. अब ग्रेटर और मिडल के बीच में आता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट. फिर उसके बाद आता है MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट बिटवीन मिडल एंड शिवालिक्स. और शिवालिक्स और प्लेन्स के बीच में आता है HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट. ओके, ये था. थ्रस्ट जोन मीन सेपरेशन जोन्स होते हैं, और कहाँ से हमें पता चलता है कि ये रेंज शुरू हो गई. ठीक है, नेक्स्ट इज रीजनल वेरिएशन. हमने अभी किया ज्योग्राफिकल वाइज, अब हम करेंगे रीजनल, स्टेट वाइज.
सबसे पहले कश्मीर। कश्मीर में क्या क्या आता है? काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, ग्रेटर हिमालय, पीर पंजाल। ठीक है। और कश्मीर में इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन होती है करेवास की। करेवा मतलब एक तरह की सॉइल है, बहुत फर्टाइल है। और यहाँ पे फेमस क्या होता है? केसर, सैफरन। सैफरन की कल्टीवेशन होती है बिकॉज ऑफ करेवास। ओके, इट इज नथिंग बट थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर क्ले। और कश्मीर में हमें मिलेगा, कश्मीर हिमालयस में वैष्णो देवी श्राइन, अमरनाथ के, शरर शरीफ। ठीक है। और यहाँ पे जो ग्रासलैंड्स होते हैं दे आर कॉल्ड मर्ग। ग्रासलैंड्स मीन्स घास के मैदान। देखे होंगे आपने पिक्चर्स गुलमर्ग की, सोनमर्ग की, क्या है वो? घास के मैदान है ना। और यहाँ पे जो ट्राइब्स होती हैं दे आर बकरवाल एंड गुज्जर्स। ठीक है। इंपॉर्टेंट सिटी श्रीनगर, इंपॉर्टेंट दून्स जम्मू दून, पठानकोट दून। ठीक है। नेक्स्ट इज हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय। इट इज बिटवीन रावी एंड काली रिवर्स। ओके। यहाँ पे हमें जो इंपॉर्टेंट टाउन्स मिलेंगे दे आर शिमला, मसूरी, धर्मशाला, कसौली, कौसानी, लैंसडाउन, रानीखेत। ओके। इंपॉर्टेंट दून भी मिलते हैं जैसे कि चंडीगढ़, कालका दून, नालागढ़ दून, हरिके दून, देहरादून। इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जो हमें यहाँ पे मिलेंगे दे आर भोटियाज एंड गद्दीज। इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड बुग्याल्स। क्या चीज, क्या पूछ रहे हो? दून। दून इज बेसिकली अ वैली। सपोज देर आर टू माउंटेन रेंजेस है, उसके बीच में जो वैली है दैट इज दून। ठीक है। समझ रहे हो वैली? इंपॉर्टेंट प्लेसेस यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, पंचप्रयाग। ओके, दे ऑल आर फाउंड इन हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय। नेक्स्ट इज दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ देयर फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। और यहाँ पे हमें ट्राइब मिलेगी लेप्चा, लेप्चा ट्राइब। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टी प्लांटेशन, चाय बहुत होती है। दार्जिलिंग टी सुना होगा आपने, राइट। यहाँ पे दुआर बनते हैं, यहाँ पे दून नहीं बनते, यहाँ पे बनते हैं दुआर। सिमिलर टू दून्स बट लेसर इन विड्थ, दुआर्स। और ये फर्टाइल होते हैं काफी ज्यादा। रिच फ्लोरा एंड फौना, रिच फ्लोरा एंड FAUNA, फौना। ओके, ठीक है। लास्ट इज अरुणाचल हिमालयस, जहां पे इंपॉर्टेंट पीक्स हमें मिलते हैं कांगटो एंड नामचा बरवा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स है जैसे ब्रह्मपुत्रा, सुबानसिरी, धनसिरी, लोहित, ये सब है। इंपॉर्टेंट ट्राइब्स यहाँ पे कौन कौन सी हैं? मोनपा, मिरी, अबोर, मिश्मी, निशी, नागाज। ठीक है। अब हिमालय का लास्ट पार्ट दैट इज पूर्वांचल हिल्स, ईस्टर्न हिल्स। ठीक है। ये जाती है नॉर्थ से साउथ। वैसे हिमालय कैसे हैं? वो ऐसे हैं, ये होती है ऐसे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पूर्वांचल हिल्स, नॉर्थ ईस्ट में मिलती हैं। कैसे कैसे? मतलब ऐसे स्टेट वाइज है ये, है ना। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है इनकी। पासिस एनडीए में ना, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना, कोई तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सीक्वेंस कैसे है? सबसे पहले थी पटकाई बम अरुणाचल में, देन आती है नागा इन नागालैंड, फिर मणिपुर, मणिपुर में, देन मिजो, लुसाई, लुशाई हिल्स मिजोरम में, दे आर आल्सो कॉल्ड ब्लू माउंटेन। ठीक है। यहाँ पे हमें मिलती है इंपॉर्टेंट लेक, लोकटक लेक, लोकटक लेक। ठीक है, मणिपुर में है। और यहाँ पे हमें मिलते हैं फुमडी, मतलब ऐसे तैरने वाले छोटे छोटे वो प्लांट होते हैं, पत्ते ऐसे बड़े बड़े, फुमडी। इतने सारे हैं कि हमने इसे नेशनल पार्क बना दिया है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कहाँ पे है? लोकटक लेक में है। कहाँ पे है? मणिपुर में। ओके, वर्ल्ड्स वन एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ठीक है। यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट डियर मिलता है, संगाई, मणिपुर का स्टेट एनिमल है संगाई डियर। ठीक है। ये देखो, ये रहा सीक्वेंस। सबसे पहले पटकाई बम, देन नागा, देन मणिपुर, देन मिजो। ये तीन है गारो खासी जयंतिया। और ऊपर अरुणाचल में डाफला, मोनपा, मिरिया, बोर, विश्मी। और ये ट्रायंगल क्या बना हुआ है?
नामचा बरोबर, ठीक है। सिंटैक्सियल बैंड, इंपॉर्टेंट पासेज देख लेना, ठीक है, जैसे कि काराकोरम, खरदुंगला, जोजिला, तंगलंगला। तंगलंगला इज हाईएस्ट मोटरेबल पास, हाईएस्ट मोटरेबल पास, तंगलंगला हो गया। नेक्स्ट इज बारालाचा, गेटवे टू लद्दाख, ठीक है। फिर है फोटूला, पीर पंजाल पास, बनिहाल पास, बुर्जिल पास, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शिप किला, जहां से एंटर करती है सतलुज रिवर, रोहतांग पास, कुंजुम पास, माना पास, माना नीति, ये दोनों हैं उत्तराखंड में। लिपू लेक भी उत्तराखंड में है। ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड चाइना। नथुला जलपला, बोथ आर इन सिक्किम, इंपॉर्टेंट। बॉम्डिला इज इन अरुणाचल प्रदेश। डीफू पास इज इन अरुणाचल प्रदेश। दिहांगला इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पंगसाउ अरुणाचल प्रदेश। ये है इंपॉर्टेंट पासेस। ये होगी हमारी फर्स्ट डिवीजन खत्म, दैट इज हिमालय, ठीक है। अभी फर्स्ट ही खत्म हुई है। नाउ विल स्टार्ट सेकंड, दैट इज नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स में देखो क्या होता है। सबसे पहले देखो पहाड़ है ना। पहाड़ कौन से हैं? दे आर ऑफ शिवालिक्स, शिवालिक्स के पहाड़ हैं। अब वहां से रिवर्स आ रही है ना, रिवर्स पहाड़ों को तोड़ती हैं, वहां से पत्थर लेके आती हैं, है ना। देखा होगा आपने, कई बार बहुत बड़े बड़े पत्थर भी लेके आती है। अब वो रिवर पत्थर लेके आएगी, तो सबसे पहले क्या करेगी? उन बड़े पत्थरों को डिपॉजिट करेगी, है ना। ऐसे होता है ना, अगर आप कोई भारा सामान उठा के जा रहे हो, ज्यादा दूर तक तो नहीं लेके जा पाओगे, जल्दी रख दोगे उसे। सिमिलरली रिवर क्या करती है? सबसे भारा सामान सबसे पहले डिपॉजिट कर देगी, उसके बाद उससे हल्का, उसके बाद उससे हल्का, और जो सबसे हल्का है वो सबसे दूर तक जाएगा। रिवर ऐसे करती है डिपॉजिट। अब ये देखो, ये जो भाबर एरिया है, भाबर, दिस वन, यहाँ पे रिवर क्या करती है? बड़े बड़े बोल्डर्स, यानी बड़े बड़े पत्थर और रॉक को डिपॉजिट कर देगी। और ये ऐसा एरिया है जहाँ पे ऐसा लगता है कि रिवर गायब होगी उन पत्थरों के नीचे। रिवर होती है, बट बिकॉज ऑफ बिग बोल्डर्स क्या लगेगा हमें? रिवर गायब होगी, ठीक है। दिस इज फर्स्ट एरिया ऑफ नॉर्थर्न प्लेन, नॉट अंडरग्राउंड, उन पत्थरों के बीच में छुप जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज तेराई, तेराई रीजन, कल बताया था मैंने, जहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, है ना। तेराई वाला एरिया, लास्ट टाइगर्स, है ना। तेराई एरिया, यहाँ पे क्या होता है? स्वाम्पी, हाँ, दलदली इलाका बोलते हैं सर। यहाँ पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन होती है। क्यों होती है? बिकॉज जो रिवर ने मिट्टी उठाई होती है ना, मोटी मोटी, वो डिपॉजिट कर देगी यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा पानी भी होगा, तो ये बन जाता है दलदली इलाका, मार्शी इलाका। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस वेजिटेशन होती है। ज्यादा वेजिटेशन मीन्स ज्यादा बड़े बड़े एनिमल्स, बहुत ज्यादा वैरायटी। इसलिए यहाँ पे हमें काफी वाइल्ड लाइफ मिलती है, काफी अच्छी वाइल्ड लाइफ। टाइगर्स मिलते हैं, राइनोज मिलते हैं, काजीरंगा ये वाले, औरांग वाले, ठीक है। बफलोज होंगी, वाइल्ड बफलोज, बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट रीजन वॉज भाबर, सेकंड वॉज तेराई। तेराई में रिवर दोबारा वापस दिखती है, भाबर में गायब, तेराई में दोबारा वापस आ गई। अब उसके बाद रिवर आती है बिल्कुल प्लेन्स में। प्लेन भी दो तरह के हैं, भांगर एंड खादर। जो तो रिवर के पास वाला एरिया है, जिसको वो हर साल फ्लड कर रही है, हर साल फ्लड कर रही है, मतलब नई मिट्टी रख रही है वहां पे, नई मिट्टी डिपॉजिट कर रही है, दैट इज कॉल्ड न्यूअर एलुवियम, इट इज खादर, ठीक है। और जो दूर वाला एरिया है, जिसको मतलब 15-20 साल में एक बार रिप्लेस करेगी, या फिर 40-50 साल में, होता है ना ऐसा कि 15-20 साल में एक बार बहुत ज्यादा मैसिव फ्लड आता है ना, होता ही है ना ऐसा, तब रिप्लेस होगी भांगर। अदरवाइज हर साल कौन रिप्लेस हो रहा है? खादर, ठीक है। सो भांगर इज ओल्डर एलुवियम, खादर इज न्यूअर एलुवियम। ये देखो, ये पिक्चर से आप ज्यादा अच्छे से देख सकते हो, है ना। फर्स्ट इज शिवालिक्स है, शिवालिक्स के बाद भाबर आ गया, देन आगे तेराई, फिर भांगर और खादर, ओके। खादर इज न्यूअर एलुवियम।
जो हर साल रिप्लेस होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसे बारी बारी पढ़ते हैं। फर्स्ट इज भाबर। भाबर इज पैरेलल टू शिवालिक्स। यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रीम्स एंड रिवर्स डिपॉजिट हैवी मटेरियल्स, और यहाँ पे रिवर डिसअपियर। नेक्स्ट इज तेराई। तेराई में क्या होगा? रिवर्स री एमर्ज, मार्शी एंड स्वैम्पी, दलदली इलाका एंड वेरिड वाइल्ड लाइफ, काफी अच्छी वाइल्ड लाइफ है। नेक्स्ट इज अलुवियल प्लेन्स। ओल्डर इज भांगर, न्यूअर इज खादर। ठीक है, यहाँ पे हमें मिलेंगे मियांडर्स, ऑक्सबो लेक्स, रिवरिन आइलैंड, सैंड बार्स, ये सब मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें मिलेंगे डेल्टास, एग्जाम्पल सुंदरबन। ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड डिवीजन खत्म, प्लेन्स। नाउ थर्ड इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडिया का ओल्डेस्ट और सबसे स्टेबल लैंडमास, इवन की हिमालय से भी पुराना, प्लेन से भी पुराना। पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है? एक टेबल लाइक लैंडफॉर्म। ठीक है, तीन तरह के लैंडफॉर्म है, एक होगा प्लेन, बिल्कुल प्लेन, एक हो गया पहाड़, है ना, एक उनके बीच का होता है ऐसा, ऐसा टेबल जैसा होगा। जरूरी नहीं बिल्कुल टेबल जैसा हो, एक साइड से स्लैंटिंग है, दूसरी साइड से टेबल है, दोनों साइड से स्लैंटिंग हो सकता है, या फिर दोनों साइड से ऐसा होगा। दैट इज अवर प्लेट्यू। ठीक है, इनकी हाइट काफी हो सकती है, 600 मीटर्स, 900 मीटर्स। ओके, अब ये देखो, इंडिया में इट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। कहाँ से स्टार्ट होता है ये? इट स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली, दैट इज पोर्ट वार प्लेट्यू। ये है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट इज गिर, सदर्न मोस्ट इज कार्डमम हिल्स, इट इज इन केरला, ईस्टर्न मोस्ट इज राजमहल। अभी ईस्टर्न मोस्ट राजमहल है, कुछ सालों या फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इट वाज कार्बी एंग्लोंग प्लेट्यू। अभी वो सेपरेट हो गया, क्योंकि जब इंडिया की प्लेट यूरेशिया की प्लेट से टकराई तो यहाँ पे बीच में क्या हुआ? फॉल्ट आ गया, यहाँ से टूट गया वो। ठीक है, अगर मान लो आप जोर से टकरा रहे हो दीवार से तो आपकी हड्डी हड्डी टूट जाएगी ना। सिमिलरली यहाँ से इंडिया की हड्डी टूट गई। ठीक है, लेकिन बाद में उसे रिकवर किसने किया? ब्रह्मपुत्र गंगा ने। वो जो फॉल्ट बन गया था उसको भर दिया मिट्टी से, इसलिए आज हमें वो दिखता नहीं है। दैट इज कॉल्ड माल्डा फॉल्ट। माल्डा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में माल्डा फॉल्ट है। ओके, हाँ, मेघालय प्लेटू उसी का पार्ट है। तीन डिविजन हैं, फर्स्ट इज डेक्कन, सेकंड इज सेंट्रल हाईलैंड एंड थर्ड इज नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू देखो, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू में सबसे पहले क्या आता है? वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स, और यहाँ पे डिफरेंट रेंजेस भी है, जैसे सतपुरा, महादेव, मैकाल, है ना, ये रेंजेस हैं। महाराष्ट्र में कौन सी हैं? सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र और बालाघाट। ठीक है, और महाराष्ट्र में हमें मिलेगा प्लेट्यू, दैट इज महाराष्ट्र प्लेट्यू, महाराष्ट्र प्लेट्यू। ओके, अब जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनको हम महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? सह्याद्री, सह्याद्री। ठीक है, अगर आप कोई महाराष्ट्र जाओगे या फिर न्यूज में पढ़ोगे सह्याद्री, तो दैट इज नथिंग बट वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, सिमिलरली वी हैव कर्नाटका प्लेट्यू, और कर्नाटका में हमें हिल्स मिलेगी, बाबा भूदान हिल्स। बाबा भूदान हिल्स, इंडिया में सबसे ज्यादा कॉफी यहीं पे बनती है, मतलब उगती है, बाबा भूदान हिल्स, दैट इज अरेबिका कॉफी। तीन तरह की कॉफी होती है, अरेबिका, रोबस्टा एंड लिबेरिका। ओके, इंडिया में रोबस्टा, लिबेरिका, रोबस्टा, अरेबिका ज्यादा होती है, नॉट लिबेरिका। ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी, ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ठीक है, उसके नीचे आएगा अन्नामलाई हिल्स, देन लास्ट इज कार्डमम। ओके, ये सब भी किस में आ रहा है? डेक्कन प्लेट्यू में। और डेक्कन प्लेट्यू की इंपॉर्टेंट खासियत क्या है? इट हैज ब्लैक सॉइल, है ना, बिकॉज ऑफ लावा ट्रैप्स। ब्लैक सॉइल में क्या सबसे ज्यादा अच्छा होता है? कॉटन, कॉटन की कल्टीवेशन इज बेस्ट इन ब्लैक सॉइल।
दैट इज फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, ये देखो ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स की हिल्स जैसे वरुशनाथ, पलानी, शेवरॉय, जावड़ी, शेषाचलम, नगारी, पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्लमल्ला, ये सारी ईस्टर्न घाट्स की हैं। शेषाचलम से कुछ याद आ रहा है? क्या बताया था मैंने? ये क्यों है इंपॉर्टेंट? कुछ बताया था मैंने। शेषाचलम, अल्लू अर्जुन, लाल चंदन, रेड सैंडलवुड, शेषाचलम हिल्स कहाँ पे मिलती है? शेषाचलम में, आंध्र प्रदेश। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यही मिलता है लाल चंदन, और कहीं नहीं मिलता, इसीलिए वो बिकता है ब्लैक में पूरे वर्ल्ड में। लाल चंदन, बाकी डिफरेंट चंदन होता है वो, काफी ज्यादा अच्छी एरोमेटिक प्रॉपर्टीज हैं, मतलब साबुन में, परफ्यूम्स में और दवाइयों में। हाँ, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है एक्सपोर्ट को, लेकिन इलीगल एक्सपोर्ट काफी ज्यादा होता है, क्योंकि जापान में, चाइना में, यहाँ से इससे फर्नीचर बनता है बहुत अच्छा, मेडिसिन में यूज करते हैं, परफ्यूम्स में करते हैं, सोप्स में करते हैं, और वो काफी महंगे होते हैं। एक बॉटल 15-15, 20-20 हजार की होगी। ठीक है, रेड सैंडलवुड ओनली इन शेषाचलम हिल्स, ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है, एंड इन आंध्र प्रदेश, अल्लू अर्जुन, पुष्पा। ठीक है, झुकेगा नहीं। ये डिफरेंस है वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स का। जो वेस्टर्न घाट्स हैं देयर कॉन्टिन्यूअस, ईस्टर्न आर ब्रोकन बिकॉज ऑफ डिफरेंट रिवर्स। ठीक है, वेस्टर्न में हमें कुछ मिलते हैं पासेस, जैसे कि थाल घाट, जो कि इसके बीच में है मुंबई और नासिक, घोर घाट मुंबई पुणे। ठीक है, थाल घाट को कसारा घाट भी बोलते हैं। अगर आप कभी मुंबई जाओगे, राजधानी में जाना, ठीक है, या फिर अगर मुंबई से आ रहे हो दिल्ली, तो राजधानी में आना, सेंट्रल राजधानी, सीआर राजधानी, वहां पे एक प्लेस आएगी कसारा घाट, चढ़ाई है वहां पे। वहां पे चढ़ने के लिए 2 इंजन लगते हैं, एक से नहीं काम बनता। ठीक है, याद रखना अगर कभी गए, कसारा घाट मुंबई और नासिक के बीच में है। राजधानी में 2 होते हैं, अगर जो बाकी ट्रेन है वहां पे एक्स्ट्रा इंजन वहां पे लगता है, पिछले स्टेशन पे ही, अगले में हट जाता है। तो दैट इज कसारा घाट, क्योंकि वहां पे स्लोप ज्यादा है, एक इंजन से काम नहीं बनेगा। ओके, अब माउंटेन्स के बीच में से रास्ता, ऐसा नहीं कि पूरा माउंटेन पार कर रखी जाएगा, वो कोई ट्रेन नहीं कर सकती। हाँ, वो चाहे 4 दिन से लगा लो। नहीं, मैंने क्या, मैं देखा हुआ हूँ। जाएंगे कभी। नेक्स्ट इज पालघाट, केरला तमिलनाडु के बीच में, एंड छेनकोटा, नॉर्थ एंड साउथ कार्डमम। ठीक है, वेर एज ईस्टर्न घाट्स ब्रोकन है, वेस्टर्न घाट से छोटे हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, हाईएस्ट पीक इज महेंद्रगिरी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट इन रियलिटी इट इज जिंदगढ़। एनसीईआरटी अपडेट होगी तो हो जाएगा। एग्जाम में एक ही ऑप्शन आएगा, दोनों आगे, तो यू हैव टू गो विद एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। ठीक है, जिंदगढ़ करेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में महेंद्रगिरी लिखा है। एनसीईआरटी गवर्नमेंट की बुक है ना, तो आप क्लेम कर सकते हो कि ये देखो गवर्नमेंट ने छापा हुआ है ना। सर एक साथ बात है। हाँ, जब पूरी फाइनल मेरिट आती है ना, तब आती है आंसर की। सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड हमें कहाँ मिलेंगे? इंडिया के सेंटर में, यानी मध्य प्रदेश। और यहाँ पे देखो विंध्यास, विंध्यास मिलेंगे हमें, और डिफरेंट प्लेट्यूज मिलेंगे, जैसे कि मालवा प्लेट्यू, मारवाड़ प्लेट्यू, बुंदेलखंड, कैमूर, हजारीबाग, छोटा नागपुर, महादेव, मैकाल, सतपुरा, राजमहल हिल्स। ठीक है, डिफरेंट एरियाज ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। विंध्यास की कैपिटल पीक, हाईएस्ट पीक क्या है विंध्यास की? बोलो, बोलो, बोलो। विंध्यास,
सद्भावना, सद्भावना पीक की थी क्या? विंध्यास की कैपिटल हाईएस्ट पीक है सद्भावना, सद्भावना पीक। विराज ऑफ सतपुरा इज धूपगढ़, सतपुरा की धूपगढ़, विंध्यास की सद्भावना पीक। ओके, अरावलीज की, अरावलीज की गुरु शिखर, माउंट आबू सुना है? माउंट आबू गुरु शिखर के पास ही है वो, है ना? राजस्थान में भी पहाड़ है। कौन से पहाड़ है? अरावलीज के पहाड़ है। माउंट आबू एक हिल स्टेशन है, ठीक है? गुरु शिखर के पास ही है वो, ठीक है? ये देख लो, अरावलीज, गुरु शिखर, विंध्यास, सद्भावना पीक, विराज सतपुरा, धूपगढ़। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। मैंने क्या बताया था? सेपरेशन हो रखी है बाय माल्टा फॉल्ट विच इज फिल्ड नाउ बाय ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर्स, ठीक है? इसमें दो प्लेट्यूज आते हैं, मेघालय एंड कार्बी एंगलोंग। मेघालय में तीन तीन हिल्स हैं, गारो, खासी एंड जैंतिया। खासी हिल्स क्यों खास है? बिकॉज ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल इन द होल वर्ल्ड, मैक्सिमम रेनफॉल मौसिन राम एंड चेरापूंजी कहाँ पे है? खासी हिल्स में है। वेराज कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, यहाँ पे हमें दो हिल्स मिलेंगी, मिकिर एंड रेंगमा, ठीक है? ये है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, ठीक है? नेक्स्ट डिवीजन इज इंडियन डेजर्ट। एक डेजर्ट कब बनता है? जब एनुअल रेनफॉल होगी लेस देन 25 सेंटीमीटर। किसी भी एरिया में अगर लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी तो दैट इज अ डेजर्ट। अगर मान लो इस एरिया में 10-15 साल, तो क्या हुआ? हर साल 25 से कम रेन हो रही है, तो हम इसे डिक्लेयर कर देंगे डेजर्ट, ठीक है? डेजर्ट कभी टेम्परेचर से डिफाइन नहीं होता, इट विल बी ऑलवेज ऑन रेन या फिर प्रेसिपिटेशन, ठीक है? लेस देन 25 सेंटीमीटर। इंडिया का डेजर्ट कौन सा है? थार डेजर्ट। कहाँ पे है? वेस्टर्न राजस्थान में है ना? वेस्ट ऑफ अरावलीज। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? ड्यून्स मिलेंगे, यानी रेत के टीले, और इसे हम बोलते हैं मरुस्थली, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है 15 सेंटीमीटर से भी कम, 150 मिलीमीटर, दैट इज 15 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है, दैट इज लूनी, लूनी रिवर, वेस्टर्न राजस्थान की इंपॉर्टेंट रिवर लूनी। लूनी के वाटरफॉल कहाँ होंगे भाई? राजस्थान में वाटरफॉल कौन सा वाटरफॉल है भाई? छोटा मोटा होगा, 2-3 फुट का। क्या राजस्थान में वाटरफॉल कहाँ से आ गया? कमाल करते हैं पांडे जी आप। कितने हाइट का है? चूड़िया, हाँ, ठीक है, ठीक है, चूड़िया, ठीक है? CHUDI भाई है। चूलिया, चूड़िया लिख रहा है, चुलिया, ठीक है? चुल मची है लूनी रिवर को, चूलिया बना दिया उसने। ओके, ऋषिकेश इज इन उत्तराखंड। देखो कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स नेक्स्ट डिवीजन। अब देखो हमने क्या पढ़ा? वेस्ट साइड क्या है? वेस्टर्न घाट्स है। ईस्ट साइड क्या है? ईस्टर्न घाट्स है। लेकिन वेस्ट घाट्स और अरेबियन सी के बीच में थोड़े से प्लेन्स होते हैं। सिमिलरली इन ईस्ट वी हैव प्लेन्स, ठीक है? उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब इनके डिफरेंट नाम है। वेस्ट में इन्हें बोलते हैं, गुजरात वाली को बोलते हैं कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट। महाराष्ट्र में बोलते हैं कोंकण कोस्ट, महाराष्ट्र और गोवा में।
whereas in Karnataka it is called Kannada coast. Kerala में Malabar coast. Okay. Whereas in east Tamil Nadu Coromandel, Odisha Andhra Northern Sircars, और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल उत्कल प्लेन्स. ठीक है, उत्कल प्लेन्स. आप कोस्टल एरिया से हो? कहाँ रहते हो? ओके, ये डिफरेंस है वेस्टर्न और ईस्टर्न का. जो वेस्टर्न है उनकी विड्थ कम है. ठीक है, बिकॉज वेस्ट कोस्ट इज सबमर्जेंस कोस्ट, ईस्ट इज एमरजेंस. ठीक है, जो वेस्ट कोस्ट है वहां पे डेल्टास नहीं बनते बिकॉज वहां पे जो रिवर्स है बहुत छोटी हैं और सबमर्जेंट कोस्ट है. ठीक है, वेराज इन ईस्ट वहां पे डेल्टास बनते हैं. बाय महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब बनाएंगी. ठीक है, और यहाँ पे वेस्ट में है डेंस वेजिटेशन, ईस्ट में है ट्रॉपिकल डेसिडुअस. ओके, ये देखो नो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास, यहाँ पे बनेंगे डेल्टास. नेक्स्ट लास्ट इज आइलैंड्स, लास्ट डिवीजन ऑफ इंडिया, आइलैंड्स. कौन कौन से आइलैंड्स मिलते हैं इंडिया में? अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स. ठीक है, सबसे पहले करते हैं बे ऑफ बंगाल वाले, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दे आर फाउंड इन बे ऑफ बंगाल. ओके, टोटल आर 572 islands total, and they are found between 6 to 14 degree north and 92 to 94 degree east. स्टार्ट कैसे होता है? सबसे पहले आते हैं कोको आइलैंड्स, दे आर पार्ट ऑफ म्यांमार. कोको आइलैंड्स के बाद आता है एक चैनल, दैट इज कोको चैनल. फिर स्टार्ट होता है इंडिया. इंडिया का सबसे पहला आइलैंड इज लैंडफॉल, छोटा सा आइलैंड है लैंडफॉल. फिर आता है नॉर्थ अंडमान. नॉर्थ अंडमान की हाईएस्ट पीक इज सैडल पीक, और पूरे अंडमान निकोबार की हाईएस्ट भी यही है, सैडल. नॉर्थ अंडमान के ईस्ट में हमें एक आइलैंड मिलेगा, वहां पे है नारकॉन्डम आइलैंड, दैट इज एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. एक्सटिंक्ट, खत्म हो चुका है, अब नहीं फटेगा ये. फिर आता है मिडल अंडमान, यहाँ पे पीक है डियावोलो. मिडल के ईस्ट में हमें मिलेगा बैरन आइलैंड, जो कि इंडिया का वन एंड ओनली एक्टिव वोल्केनो है, यानी टाइम टू टाइम फटता रहता है, लावा निकलता रहता है थोड़ा बहुत. ठीक है, एक्टिव वोल्केनो इंडिया का वन एंड ओनली बैरन, मिडल अंडमान के ईस्ट में. ठीक है, मिडल के नीचे आता है रिची से आके पहले को. ओके, उसके बाद आएगा साउथ अंडमान जहां पे अंडमान निकोबार की कैपिटल है, दैट इज पोर्ट ब्लेयर. ओके, और साउथ अंडमान के वेस्ट में हमें मिलेगा सेंटिनल आइलैंड, और ईस्ट में मिलेगा रटलैंड. साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में है वी हैव डंकन पैसेज, साउथ और लिटिल के बीच में. अब लिटिल और निकोबार के बीच में आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10 डिग्री चैनल, जो सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार को. 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री नॉर्थ. निकोबार का सबसे पहला आइलैंड आएगा कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में सोमब्रेरो चैनल. ठीक है, सोमब्रेरो चैनल. फिर आता है लिटिल, फिर ग्रेट निकोबार. अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रेट निकोबार. और जो अंडमान निकोबार है बने कैसे हैं? दे आर एक्सटेंशन ऑफ अराकन-योमा माउंटेन्स, जो कि पूर्वांचल हिल्स हैं. पूर्वांचल हिल्स म्यांमार में एंटर करती हैं. म्यांमार में इनका नाम है अराकन-योमा, और यही हिल्स आगे जाके अंडमान निकोबार बनाती हैं. ओके, नेक्स्ट इज लक्षद्वीप. लक्षद्वीप कहाँ पे है? अरेबियन सी में है. लक्षद्वीप में टोटल आइलैंड्स कितने हैं? 36 हैं. 36 में से 11 में लोग रहते हैं, बाकी खाली हैं. ओके, और ये केरला से कितनी दूर है? अराउंड 300 to 400. ओके, मिनिकॉय इज लार्जेस्ट आइलैंड, मिनिकॉय. और ये आइलैंड्स कैसे हैं? सबसे पहले आएगा किल्टन, फिर आएगा अमिंदीवी, फिर कदमत, फिर लैकेडिव, अगती, कैननोर, एंड्रॉट, कवरती, मिनिकॉय. ओके, इसमें जो याद रखना है दैट इज जो मिनिकॉय है, मिनिकॉय, दिस मिनिकॉय
एंड कैननोर, इन सभी को सेपरेट करती है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री। और मिनिकॉय और मालदीव्स को कौन सेपरेट करता है? 8 डिग्री। ठीक है, मालदीव्स और इंडिया को कौन सेपरेट कर रहा है? 8 डिग्री चैनल, 8 लैटिट्यूड, 8 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये हो गया हमारा फिजियोग्राफी चैप्टर खत्म।